गुड मॉर्निंग स्वप्निल। किसी और के पास आर्किटेक्चर है वो वाला? अक्षय आप रुक जाइए यार, अब मुझे पता है आपसे तो मिल ही जाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स। महेश आपके पास है? शालिनी, किरण, प्रियंका? Yes, sir. ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट आर्किटेक्चर। गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ वापस, अगर आप डबल बात क्लॉक करना नहीं मैनेजमेंट सीखेंगे, बोलेंगे। अगर कॉन्फिडेंटली नहीं क्या बात वही से करेंगे, इक्वल इंटरव्यू में है आप कितने भी अच्छे टेक्निकल क्या? हो जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ही एग्जांपल ले लूं, अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं करूंगा तो आप मेरे पास क्यों आएंगे पढ़ने? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टॉक विद द कॉन्फिडेंस। अगर नहीं बात कर पाओगे तो देर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, शालिनी कैन यू शेयर दैट आर्किटेक्चर प्लीज? शालिनी, you there? I can't hear Shalini. Anybody can hear? नो सर। इतनी देर में तो मैं आर्किटेक्चर डिजाइन कर लूंगा यार। Okay, anybody else can share please the screen and show me the architecture? WhatsApp पे नीचे है। I'm sharing the screen. I will design the architecture. Leave it guys. My screen is visible. यस सर। Yes, sir. Before I move on, there is an assignment for tomorrow. आपने अपने बारे में 1 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार करना है। आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना है 1 मिनट का, जिसमें दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट इंटरव्यूअर आस्क, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, यस सर। आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत ट्रिकी है। हियर यू कैन एलोबरेट अबाउट योरसेल्फ लाइक एनीथिंग। एंड ये जो आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना है, यू शुड एबल टू टॉक 1 मिनट। आपको 1 मिनट अपने बारे में बात करनी है। विल यू एबल टू टॉक 1 मिनट? क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, राइट? यस सर। So if you can't talk about yourself, that you cannot talk about anybody else, right? आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा आप अपने आप को जानते हैं, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टॉक वेरी कॉन्फिडेंटली। यू शुड टॉक व्हाट यू वांट टू कन्वे टू द अदर। If you're not able to talk about yourself, then there's definitely a gap. And how will you crack the interview? And it should come out from the your statement that what you want, what you have done, what you want to achieve, and whatever you want to achieve, what are you doing to achieve that? That should very crisp and clear. So आपको 1 मिनट का ये प्रिपरेशन करके आना है कल, राइट? दैट इज वन। अनदर थिंग इज, अपना रिज्यूमे जैसा भी है, create your resume and show to me. I will tell you how to update. As per market. आपको जो इंटरव्यू में लेके जाना है वो कैसा होगा, राइट? तो आप
रिज्यूमे क्रिएट करो और रिज्यूमे लेकर आओ और टेल मी। तो 2 असाइनमेंट्स हैं एंड एवरीबॉडी, दिस इज टू एवरीवन, ओके। You bring your resume, discuss with me, right? It will be an open session where I will tell you what is the gap in your resume and how to fill it. Sure, sir. Okay. Shelly, you recently joined, right? Why my email ID require, Abhijit? Yes, Sachi. My power gone at home. No problem. So tomorrow you need to. No, don't send me. Don't send me. We will discuss here only. After that, you recreate it again and then send Abhijit, so that I can finally verify. Okay. So first of all, I will tell you, guide you how to create, and then you create and then send it to me, so that it will be ready. Making sense? Yes, sir. तो रिज्यूमे नेक्स्ट वीक में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कल आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके आइएगा, ओके? Okay, sir. So let's talk about the new component architecture. Sorry. So I would like to create a website. In this website, I want to sell product, right? So create a website and it should be very secure. Okay, it should be very secure, should not go down. And cater my, just a second. Cater my ad hoc client. Okay. Cater my ad hoc client and okay. And I should see the utilization of my whole cluster using dashboard. And okay, not only this, I want to create everything. There are 2 ways of creation. One, through console. 2, using CloudFormation. Okay. So first you go ahead with this. Second, you create with the CloudFormation. Okay. And it should, whole cluster should be monitored. And I should get the notification of anything goes wrong. Okay. I should get the notification. Okay. Any doubt on this? Anyone? You cater my ad hoc client. Okay. मेरे क्लाइंट, एडॉक क्लाइंट मतलब एक तो ये है कि डेली मेरे 10 कस्टमर आते हैं, अगर 20 हो जाते हैं तो 100 हो जाते हैं तो 1 लाख हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कैटर होने चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है। मेरा जो आर्किटेक्चर है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाने चाहिए। इज इट ओके? ओके, दैट्स फाइन। ये जो सेल प्रोडक्ट्स है उसके लिए वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ेगी। क्या करोगे ये आपके ऊपर है, मुझे तो चाहिए, और हाईली HA होना चाहिए। ओके,
हाई अवेलेबिलिटी एंटेन होने चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, एनी क्वेश्चन? अभी मत बोलो, जब मैं करने का दूंगा तब बोलना। मैं बोल रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, एवरीबॉडी साइलेंट हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता साइलेंट का डेफिनेशन क्या है। आपको समझ आया, आपको नहीं समझ आया, मैं ये असाइनमेंट दूं या नहीं दूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आई एम कंप्लीटली ब्लैंक। अभी मैं दूसरा टॉपिक करा दूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा आसान है। रोज हर क्लास में एक लेक्चर देना पड़ता है, तब जाके 2-4 लोग यस बोलते हैं। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू प्रैक्टिस कि आप जाके कहानी सुनाओ लोगों को, उनको समझाओ कि बॉस आपके लिए कर रहा हूं मैं, अच्छी बात है, आपको समझना है, तब जाके लोग रेस्पॉन्स देते हैं। दैट्स व्हाट द प्रैक्टिस ऑफ दिस बैच। सर जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं हमने, ये कैसे होगा बाद में सर जब क्वेश्चन आएंगे तब। विजुअलाइज तो बात की बात है, जब मैं बोल रहा हूँ आपको ये करना है तो कोई ये तक नहीं बोल रहा हाँ करना है। किसी ने ये नहीं समझ में आया होगा अभी तक क्लाउड फॉर्मेशन से कैसे करेंगे, कंसोल का क्या मतलब है, मॉनिटरिंग में क्या है। यार कुछ तो बोल सकते हो आप लोग। आई विल नेवर गेट मोटिवेट विद दिस साइलेंस। मैंने पहले दिन भी बोला था आपको सिर्फ पढ़ना है, और मुझे सारे पेन मेरे हैं, और आज भी मैं उस बात पे स्टिक हूं। लेकिन आप तो पीछे चले गए, जबकि आप सब लोगों ने तो बोला था सर पढ़ने ही तो आए हैं, हम तो पढ़ेंगे ही। कहाँ है आपका प्रॉमिस? गायब हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स ऑब्वियसली। सर यहाँ पे आप इन सब डेफिनेशन से दिमाग में इस एक एज एन व्हेन आई सेड, आपके दिमाग में सारे AWS के कंपोनेंट तुरंत आ जाने चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हो? अगर मैं वेबसाइट बोलता हूं तो बट ऑब्वियस कि इसके अंदर राउट 53 यूज होगा, इसके अंदर राइट सर्टिफिकेट मैनेजर यूज होगा, राइट। अगर मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं तो मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वो सिक्योर होगी। सिक्योरिटी के जो जो भी हमने लर्न किए हैं सारे कंपोनेंट्स आ जाने चाहिए। शुड नॉट गो डाउन का मतलब है कि आपका ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली होना चाहिए। कैटर एडॉक में ऑटो स्केलिंग होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ क्लस्टर यूजिंग डैशबोर्ड, मतलब क्लाउड वॉच के अंदर डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा आपको। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब लोड बैलेंसर होना चाहिए एवरी लेयर पे। मॉनिटरिंग का मतलब क्लाउड वॉच के थ्रू मॉनिटर करोगे। SNS का मतलब आपको अलर्ट्स आएंगे। आप समझ रहे हो कितने सारे कंपोनेंट हैं इसके अंदर? आप VPC यूज करोगे अपना। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. और ये सब बनाने से पहले आप मुझे इसका आर्किटेक्चर डिजाइन करके दोगे। ये सब बनाने से पहले आप मुझे अपना आर्किटेक्चर डिजाइन करके दोगे कि ये दिखेगा कैसे। Okay. कहाँ गए वो ग्रुप्स जो मैंने क्रिएट किए थे? आपके यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किए थे ना मैंने? हाँ सर। तो कौन से हर ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटिव बताना मुझे कौन है यहाँ पे। कोई भी एक नाम ले सकते हो आप अपने ग्रुप का, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं इसको क्लीन नहीं करता, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उड़ा दूंगा इसको नहीं तो अभी। ओके, कौन है ग्रुप 1 का फर्स्ट पर्सन? हु इज द पर्सन? कौन है बताइए मुझे नाम। सब भूल गए कौन है ग्रुप में? याद है आप लोगों को? Sir, you can take my name, Santosh. संतोष, ग्रुप 1। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। Priyanka. नेक्स्ट। सर किरण। नेक्स्ट। सचिन।
अलग अलग बैच में से देना हो, मतलब एक ही ग्रुप के मत दे देना सारे। एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, राइट? और भी होंगे ना? बस 5 ही है? 27 पीपल हैं, तो इसका मतलब अगर एवरी ग्रुप में 4 पीपल हैं तो अभी भी कम है ना? सीधा ब्यूटी पीपल है ही नहीं यहाँ पे, या उन्हें पता ही नहीं वो कौन से ग्रुप में है। हम्म। सर ग्रुप का नंबर याद नहीं है, बट ग्रुप में कौन कौन लोग हैं ना वो पता है। अरे बॉस, कभी ग्रुप के साथ बात करी होगी तो याद होगा ना। नहीं नहीं, ग्रुप के अंदर जो लोग हैं ना उनके साथ बात होती है, पता है वो हाँ कौन कौन है, बट हाँ। ग्रुप का नाम क्या है और नंबर क्या है वो नहीं पता है। ऐसा ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसा याद नहीं है। It's not working guys, believe me, it's not working. आपको रियली लगता है कि मुझे एफर्ट मारने चाहिए आप लोगों के साथ? आप सोचोगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है टीचर। हाँ, मैं चाहता हूँ आप लोग करें, राइट? बुरी लगती हैं चीजें कई बार, राइट? आपको लग रहा होगा कि छोटे बच्चों की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमें, है ना? जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे पढ़ा, हम वैसे बोल रहे हैं हमें कि पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, रोज रोज कहानी सुनाते हो। वी आर प्रोफेशनल्स, आई अंडरस्टैंड यू गाइस आर प्रोफेशनल, बट मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट यहाँ से निकले ना, दे शुड बी गुड इनफ। मैं नहीं कहता कि आप लोग ना 10 क्वेश्चन मार्केट में पूछे जाएंगे या 100 क्वेश्चन चाहेंगे तो आप 100 के अंदर आंसर दो, ऐसा नहीं सोचता मैं। लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि अगर 10 में से 7 या 8 भी दे दिए विद कॉन्फिडेंस तो मैं सक्सेस हो गया, जो मैंने पढ़ाया वो सक्सेसफुल हो गया। और किसी भी इंडस्ट्री को 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए, राइट? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और 10 आंसर करेक्ट देते हो ना तो नहीं चाहिए उसे। आप 10 में से 7 देते हो बट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है ना, वो ले लेगा आपको। याद रखना इस बात को कभी जिंदगी में, ओके? इस बात की, और आपने इंटरव्यू दिए होंगे तो आपको ये पता भी होगा, ओके? अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको ये पता भी होगा, और नहीं दिए हैं तो आप लिख लीजिए, ओके? सो ये आप लोगों ने ये ले लिया। Yes, Yes, sir. sir. इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने पढ़ी है वो भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ओके? बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने दी हैं वो इंप्लीमेंट चाहिए मुझे इसके अंदर, ठीक है? इसमें आरडीएस भी होगा यूज। कैसे होगा आरडीएस? डेटाबेस प्रोडक्ट की डिटेल्स कहाँ से आएंगी? यहाँ से, राइट? प्रोडक्ट की पिक्चर किस में स्टोर होंगी? S3 में। समझ रहे हैं आप? एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर जो, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, और इसको 2 तरीके से बनाना है आपका ये प्रोजेक्ट, पता है? एक कंसोल से पूरा डिजाइन करो, एक क्लाउड फॉर्मेशन से बनाना। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट यूज होगा इसके अंदर वीपीसी यूज हुआ, वीपीसी के सारे कंपोनेंट यूज हुए, राइट? दूसरा, इसके अंदर S3 यूज हुआ। तीसरा, EC2 यूज हुआ। चौथा, राउट 53 यूज हुआ। फिफ्थ, ACM यूज हुआ। सिक्स्थ, लोड बैलेंसर यूज हुआ। सेवंथ, ऑटो स्केलिंग यूज हुआ। 8, क्लाउड वॉच यूज हुआ। और क्या यूज हुआ इसके अंदर बताइए? एनीबॉडी? क्लाउड फॉर्मेशन। Formation. क्लाउड फॉर्मेशन, RDS, RDS, और कुछ? SNS. SNS। इस पूरी वेबसाइट को बना के, एक तो ये सारा तरीका हो गया, राइट? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कंसोल के थ्रू डिजाइन करोगे। दूसरा ऑप्शन है क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू करोगे। तीसरा, आप EBS में डाल के दिखाइए मुझे, EBS से चलनी चाहिए वेबसाइट, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के थ्रू।
सर हमारा EBS हुआ नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? लास्टिक भी इन स्टॉक, यस। ओके ओके, वो हुआ है। लास्टिक भी इन स्टॉक, ओके। ये 3 ऑप्शंस के थ्रू आपको मेरे को दिखाना है करके, समझ रहे हैं आप? और इसके लॉग्स मेंटेन करिए ना, कौन सा कहाँ अगर कुछ एरर आया तो कैसे होगा। तो लॉग मैनेजमेंट भी आ गया। लॉग मैनेजमेंट में कई सारे कंपोनेंट्स आ गए आपके, राइट। सर तो फिर ये यूजर की डेटा स्टोर करना है क्या, मीन्स उसकी प्रोफाइल वगैरह? प्रोफाइल हाँ करो, RDS में मेंटेन करो आप सब, बिल्कुल करो, ठीक है। देयर आर 3 वेज ऑफ क्रिएटिंग दिस साइट, कंसोल, क्लाउड फॉर्मेशन एंड EBS। मुझे चाहिए, लेकिन आई कैन बैट अगर आपने ये कर दिया, तो मार्केट में जाइए और बोलिए मुझे AWS आता है। यू कैन गिव आंसर ऑफ ऑल। समझ रहे हैं? इसलिए ग्रुप की जरूरत है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए इस ग्रुप की जरूरत है, जिस ग्रुप में आप लोग हैं। आप ग्रुप के लोगों से डिस्कस कीजिए, हर ग्रुप अपना ग्रुप के लोगों को पकड़ो, डिस्कस करो, आर्किटेक्चर डिजाइन करो, कम हियर, डिस्कस विद मी, शो गेट द फीडबैक फ्रॉम मी और फ्रॉम द अदर ग्रुप एंड देन इम्प्लीमेंट इट। बिकॉज सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने से नहीं होने वाला ये प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं आप? यस सर। Yes, sir. नहीं होगा ये इम्प्लीमेंट, लिख लेना मेरे को इसी हालत में। करोगे तो मजा आ जाएगा सर, नहीं करोगे तो क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकता। सर एक मेरे पास आइडिया था। हम्म। अ, हम जो EC2 लेंगे उसके अंदर वेबसाइट का नहीं क्या, मीन्स हिस्ट्री का डेटा लेंगे। उससे हम क्या करेंगे कि जो HTML पेज है ना, फर्स्ट वो लॉन्च करेंगे और उसमें एक हाइपर लिंक देंगे, और वो हाइपर लिंक है ना डायरेक्टली S3 की रहेगी। तो डायरेक्ट S3 का एक्सेस हो जाएगा, S3 का डेटा वहां पे आ जाएगा। तो हमें बार बार EC2 की जरूरत नहीं गिरेगी। कहाँ पे नहीं देंगे? कैन यू रिपीट प्लीज वन मोर टाइम? हाँ, ये जो वेबसाइट लॉन्च करेंगे ना हम, तो हम्म। एक जो index.html रहेगा हमारा, वहां पे हम हाइपर लिंक देंगे। लास्ट टाइम मैंने किया था कि टू सी अक्षय फोटोज क्लिक हियर। तो वहां पे क्लिक होने के बाद है ना, वो डायरेक्टली S3 का जो बकेट है वहां पे उसका रिडायरेक्ट कर रहा था। ओके, तो उसमें मुझे एक बात बताओ। हम्म। ये अक्षय है, अक्षय मेरा कस्टमर है, उसकी प्रोफाइल मैंने मेंटेन करी और यहाँ पे क्लिक ऑन अक्षय क्लिक कर दिया, राइट? तो उसका पेज ओपन हो गया, राइट? हाँ, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होगा? डेटा तो यहाँ पे पड़ा है अक्षय का, यहाँ पे तो उसकी पिक्चर पड़ी है S3 में। हाँ, वो डिस्प्ले हो जाएगी। वो जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट आपने दिया था ना। डेटा कहाँ है? डेटा कैसे आएगा अक्षय का? अक्षय, ये अक्षय है, यहाँ पे उसकी फोटो पड़ी। आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुके हो बाय द वे आप ऑलरेडी, हाँ, जो पहले वाला आर्किटेक्चर है आपका। तो यहाँ हाँ। पे अक्षय की पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ अक्षय के बारे में लिखा हुआ है। ये डेटा तो यहाँ से आ रहा है ना, हम्म। राइट? यहाँ पे अगर कुछ चेंज करता है, जैसे अक्षय ने अपना घर चेंज कर लिया या मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना ऑटोमेटिकली। करो, करो, RDS का डेटा कैसे आएगा वो करो। आधे से ज्यादा आर्किटेक्चर कर चुके हो आप, पता है। ये रहा जो आपने भेजा अभी आर्किटेक्चर, दैट टॉक्स अबाउट सेम। हमने मेहनत करी थी ना इसमें बहुत सारी। ये देखिए, ये हो रहा, यहाँ पे ACM है, यहाँ पे राउट 53 है, ये सब कर चुके हैं, राइट? ये एडमिन है, SSH है,
जंप सर्वर बनेगा, लोड बैलेंसर बनेगा, सब है ना इसमें। प्राइवेट पब्लिक है, प्राइवेट प्राइवेट है, ये यहाँ से S3 है, ये एंड पॉइंट कनेक्टेड है। कर तो रखा है आपने आधे से ज़्यादा, और थोड़ा ऐड करना है। That's what I enhanced the previous one, right? यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है। करा तो है आपने चीज़ों को। इस तरह के पिक्चर मत डाला करो। प्रोफेशनल डायग्राम खराब हो जाता है। ओके, अक्षय कुमार वाला जब किया था याद है? ये लिखते नहीं है 100% यूजेबिलिटी, ये नहीं लिखते यहाँ पे। सर RDS यूज करना है मतलब उससे क्या डेटा रिट्रीव करना है? आई एम सॉरी, सर इसमें RDS यूज करना है आपने बोला ना? राइट। हाँ, तो उसमें क्या डेटा हम डालने वाले हैं? मेरा कस्टमर है, राइट? कस्टमर की डिटेल्स डालने वाले हैं। ये मेरा अक्षय है, अक्षय कहाँ से है, राइट? अक्षय का डिटेल्स क्या है, वो किस तरह का प्रोडक्ट मेरे से खरीदता है, राइट? गेटिंग? ओके। तो सारी डिटेल डालनी है। प्रोडक्ट जो मेरे प्रोडक्ट डाले हुए हैं, लेट्स से मैं फ्रिज है मेरा, तो फ्रिज की डिटेल्स डेटाबेस में पड़ी है RDS में। इसकी पिक्चर जो है, फ्रिज की जो पिक्चर है वो S3 में पड़ी है, राइट? टीवी है, टीवी की डिटेल RDS में पड़ी है, इसकी पिक्चर S3 में पड़ी है। हाँ। ओके, हाँ ठीक है सर। गणेश अभी ज्वाइन कर रहे हैं, करके करिएगा, इस आपको रियली समझ में आएगा। उस आर्किटेक्चर के अंदर इसको घुसा के लेकर आओ, इसको डाल के लेकर आओ, देन आई विल चेक जो मैंने बताया। क्या कह रहे हो? चलो लाओ चेक करता हूँ। तुम लोग, जब मैं चिल्लाता हूँ ना, जब मैं आप लोगों के ऊपर बोलता हूँ कि आप लोग बोलिए, तब जाके आप बोलते हैं, अदरवाइज मैं थक जाता हूँ आपसे कि यार बोलिए तब जाके। अभी 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 लोग बात कर रहे हैं। वाई दिस इज नॉट हैपनिंग इन द स्टार्ट विद, जब मैं बोलता हूँ गाइज शाउट, बात करिए, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, तब पूछते नहीं। जब मेरा दिमाग गर्म हो जाता है तब आप बात करते हैं। ऐसा क्यों? हर क्लास में ऐसे ही होता है, जब मैं बोलता हूँ कि गाइज वाई आर नॉट टॉकिंग, तब जाके आप बात करते हैं। गाइज आई एम योर फ्रेंड, मैं तो कभी नहीं रोकता कि आप मेरे से कुछ भी बात करने से, राइट? बी कंफर्टेबल, आस्क, कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई कंप्यूटर में घुस के कुछ करने थोड़ी वाला हूँ, आपको गुस्सा थोड़ी करने वाला हूँ। हाँ, ओके, हाँ दिख रही है, एक सेकेंड। ओके, एक तो ये डायग्राम ना, ये चुन्नू बच्चे वाला डायग्राम है। इससे पहले जो डायग्राम अभी पिंक किया था, किसने पिंक किया था? ये किसका था? ये अभिजीत का। वैसा डायग्राम बनाओ, ये चुन्नू बच्चों वाला डायग्राम है, ठीक है? प्रोफेशनल बनाओ थोड़ा। इसके बैकग्राउंड कलर्स कहाँ चले गए जो AWS देता है? वो सब गायब है। तो AWS है, रीजन है, VPC है। रीजन नहीं भी डालोगे तो चलता है इंडस्ट्री में, दैट्स ओके। VPC है। इंटरनेट गेटवे कोने में क्यों पड़ा हुआ भाई? कहाँ से कम्युनिकेशन आ रहा है, कैसे पता चलेगा? ओके, राउट 53 जो यूज कर रहे हो आप, ये सारे आइकन छोटे छोटे बनाइए यार, राइट? ये जो नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है आपका डायग्राम, डजंट लुक गुड। क्योंकि
आपका इंफ्रा एडमिन भी कहाँ से आ रहा है, आपका इमेज अपलोड यूजर वहां से डाल रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो आपने S3 में बकेट डाल रहा है ये अक्षय, ये कहाँ से ला, ये अक्षय का S3 कहाँ से कनेक्टेड है? मुझे तो नहीं दिख रहा S3 से कनेक्टेड है। इसको ये ठीक करके लाओ, ये डायग्राम नहीं चलेगा मार्केट में। ये जो अभिजीत वाला है ना वो अच्छा है, उसमें भी थोड़े से चेंजेस हैं बट इट्स मोर कंपैरेटिवली गुड। ठीक है, ये जो आपका ये डिफॉल्ट VPC के अंदर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दिया है, कहाँ से बनेगा, कहाँ पड़ा है, ऑर्फन लग रहा है। लोड बैलेंसर में रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप समझ रहे हैं? आपने प्राइवेट सबनेट एक ही जगह दिखाया, दूसरा प्राइवेट सबनेट कहाँ है? ऑटो स्केलिंग के अंदर, ऑटो स्केलिंग में मल्टीपल सर्वर क्यों दिखा रहे हो? ऑटो स्केलिंग का अपना एक साइन है ना, आइकन है ना ऑटो स्केलिंग का, वो की तो उसको उसकी जगह ये 3 बार सर्वर लिखने का क्या मतलब है? तीन ही ऑटो स्केलिंग होगी। ऑटो स्केलिंग तो कल 10 भी बढ़ा सकते हो उसको। ओके, इस वेरी वेरी रॉ, प्लीज अपडेट दिस। ठीक है, ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। स्क्रीन दिख रहा है? हमारे ये सारे कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, राइट? तो इंटरव्यू मैंने नेक्स्ट वीक बोला आपको तैयार करके आइए अपने रिज्यूमे, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, राइट? ओके, दैट्स व्हाट वी विल टॉक। ओके, एंड आई विल गिव यू द डम्प्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। AWS आर्किटेक्चर, हम इस पे ऑलरेडी कैसे AWS के कौन से आइकन्स हैं, कैसे आप यूज करोगे, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट अगर कुछ और है तो वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट। ओके, वंस यू कम बैक विद योर रिज्यूमे देन आई विल हेल्प यू टू मैप। आप अपना मुझे बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एनीबडी, एंड देन वी विल मैप इट टू द existing experience to the AWS. Okay, so let's talk about Lambda और Route 53 now. आप लोग क्लिक लैब का यूज करते हो? आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी ना, क्लिक लैब। हाँ सर, कभी गए हो उसके अंदर? Yes, sir. एक ही बार। Yes, एक ही sir. बार। तो पूजा वूजा करवाओ भगवान की, जिससे दोबारा जा सको इसमें। हाँ, इसमें डेली जाना है 10 बार। इसके अंदर हर वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। यस सर। कौन सा कंपोनेंट सर्च करना है? वट एवर यू नेम, Route 53 एंटर मारो यहाँ पे Route 53। मतलब नॉट ओनली दिस कंपोनेंट विल कम, बट उससे रिलेटेड बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। ओके, आपको कुछ भी सर्च करना है, आपको कुछ भी सर्च करना है, सब मिलेगा यहाँ पे। देखिए, ट्रस्टेड एडवाइजर, IAM, DynamoDB, DynamoDB1, पॉलिसी क्रिएशन IAM से रिलेटेड, राइट? आप समझ रहे हैं? सब है यहाँ पे। यू क्लिक इट एंड यू विल गेट इट फ्री में, पैसे भी नहीं ले रहे लोग। फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जाते आप लोग इस पे?
सर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है। यहाँ सब है, सर्च करके देखो। Yes. ऐसे एक दो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना तो ऐड आ जाएगा कि कैसे वर्क होता है, फ्लो कैसे होता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ये टारगेट कर रहे हो ना आप। IAM, EC2, क्लाउड फ्रंट, VPC, सबके बारे में दिया हुआ है, जाइए और करिए। क्या प्रॉब्लम है करने में? क्यों नहीं करते आप लोग? देखो पूरा क्वेस्ट बना हुआ है। सत्यवान, Yes, sir. you are not saying anything. नहीं सर, मैं करता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस क्विक लैब पे। IAM पॉलिसी मैंने की थी। अगर IAM पॉलिसी की थी तो पॉलिसी जनरेटर क्या होता है बताना? पॉलिसी जनरेटर वहाँ पे नहीं था सर, पॉलिसी जनरेटर कोई। उन्होंने सिर्फ एडमिन रोल असाइन करना था, यूजर को ऐड करना था। कभी इसको देखा आप लोगों ने? यस सर, देखा है। यहाँ पे अगर आपको परमिशन देनी है, परमिशन डिनाई करनी है, अलाउ करनी है, सब यहाँ से होता है। वो जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट दिया था उसके लिए यूज हुआ था ये। हुआ था ना? हाँ। Let's do the Route 53 now guys, that's important. Route 53 हमने डिटेल में नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ DNS को मैप करना सीखा था, राइट? सर सॉरी, ALB में ALB भी बचा है हमारा, होस्ट बेस और पास बेस ये बचा है हमारा। हाँ, होस्ट बेस और पास बेस। होस्ट तो गदाधारी भीम जो करा था वो बाय डिफॉल्ट होस्ट बेस था। तो ये करना है या ये करना है राउट 53? हाँ। ओके, पढ़ो क्या लिखा है किरण। The name is a reference to TCP or UDP port 53, where DNS server requests are addressed, and a reference to US Route 66. इसका नाम राउट 53 समझ में आया क्यों है? क्योंकि यूडीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो क्या है? 53। और जो यूएस का जो बहुत फेमस जो एड्रेस है वो यूएस रूट है, इसलिए यहां से रूट लिया गया और यहां से 53 लिया गया, राइट? यूएस रूट 66, यूएस रूट 66 में बेसिकली सिविलियंस को नहीं जाने दिया जाता। ओके, तो अगर गूगल पे भी मारोगे आप तो यूएस रूट जो है, जितना मेरे को पता है, डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। ओके, तो यूएस रूट 66 के बारे में दिया, देखो कितना बड़ा रूट 66, अप्रॉक्स कितना लिखा है, 4,000 किलोमीटर लगभग बड़ा है, इट्स ह्यूज। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा नाम क्यों दिया है, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस, सॉरी, इट्स वेरी फेमस एंड द 53 इज केम फ्रॉम द यूडीपी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 53। तो बेसिकली देखो रूट 53 जो है, दिस इज यूज फॉर डीएनएस,
You want me to record ना? कोई बोला ही नहीं आज. एक मिनट दीजिए. Let me come back from the restroom. Okay, just a second. Guys, I'm back. The sound is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Route 53 is for the DNS, right?